Jai Hind. Today we will start with the genus study of Unit 1 under Bryophyta. The first genus is Rixia. तो आपके कोर्स में 4 जीनस हैं, Rixia, Marchantia, Anthoceros and Sphagnum. Now come to systematic position of Rixia. So we have already studied about classification. Bryophyta is divided into 3 classes: Hepaticopsida, Anthocerosopsida, and Bryopsida. So this is primitive genus and comes under Hepaticopsida, in which all liverworts come. They may be leafy liverworts or thalloid liverworts. तो Rixia कैसा है? Thalloid liverwort है. So it comes under division Bryophyta, class Hepaticopsida, order Marchantiales, family Rixiaceae, and genus Rixia. Now come to the distribution. Distribution and habitat of Rixia. According to Remer in 1954, Rixia, the most widely distributed genus of family Rixiaceae. सबसे ज़्यादा distributed genus है ये. It is represented by 200 species. The name Rixia was given in the honor of P.F. Rixey, है ना, RICCI, तो उन्हीं के नाम पे इसको Rixia नाम दिया गया. A Florentine politician. तो ये पॉलिटिशियन थे बेसिकली, लेकिन उनके ऑनर में ये नाम इसको Rixia दिया गया. Srivastava in 1964 recorded 29 species from different parts of India. क्योंकि हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन इन रेफरेंस टू इंडिया स्पेसिफिकली पढ़ते हैं. All species are generally terrestrial and prefer to grow on moist and shady places except Rixia fluitus. जैसे कि मैंने habitat में आपको बताया भी था जनरल पार्ट में कि Rixia fluitus इसकी aquatic species है, which is an aquatic species and occur floating in the still stagnant water. Still का मतलब रुके हुए पानी में ये रहती है, जो पानी फ्लो नहीं करता, और submerged below the surface of standing water. According to Puri 1973, Rixia is widely distributed in both tropical and temperate regions of the world. This is represented in India by 33 species. India में इसकी 33 species present है. Now, common terrestrial Indian species are Rixia gangetica, Rixia discolor, Rixia himalayensis, Rixia glauca, Rixia crystalline, Rixia frostii, Rixia hirsuta, Rixia melanspora, and some aquatic species which are confined to a specific place like Rixia fluitans. It is also present in India, only endemic or conformed to Indian territory. Rixia gangetica, Rixia karsyapi, and Rixia pandemi are also endemic species, जो कि केवल इंडिया में है, थ्रू वर्ल्ड नहीं प्रेजेंट है. क्योंकि नेम से ही आपको समझ में आ रहा है, they are reported from India and they are endemic to India, यानी confined to Indian territory. Now come to the structure of Rixia. तो जब भी कोई जीनस आएगा, अगर फुल डिटेल जीनस आता है, मतलब राइट डिटेल नोट और एसे ऑन Rixia, तो आप कंप्लीट लिखेंगे, यानी हर चीज को डिस्क्राइब करते हुए, स्टार्टिंग विद सिस्टमेटिक पोजीशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिटेट, देन स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर में गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर and sporophytic structure. Gametophytic में external feature and internal feature or anatomy of the genus. Likewise, reproduction, then male and female reproductive organs, then come to sporophytic structure. Development आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए developmental details हम लोग study नहीं करेंगे. Now, gametophytic body or external feature of the gametophyte, the plant body of Rixia is generally gametophyte or haploid, as we have discussed many times in lectures. Gametophytes are fleshy, prostrate and dichotomously branched. तो ये fleshy होते हैं, liver like, slightly fleshy, prostrate grow करते हैं, धरती से समानांतर ग्रोथ करते हैं, और
ये हर थैलस में डाइकोटोमी प्रेजेंट होती है, यानी हर ब्रांच जब भी डिवाइड होती है तो 2 में डिवाइड होती है स्पेसिफिकली, और इनकी रिपीटेड डाइकोटोमी के कारण ये एक रोजेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है ना। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि हर बार हर थैलस 2 में डिवाइड हो रहा है। मैं देखिए एक को आउटलाइन मार्जिन दे रही हूँ, जैसे ये 2 में डिवाइड हुआ, फिर आगे भी थैलस जो डिवाइड होगा, देखिए यहाँ पे भी ये 2 में डिवाइड हो रहा है। तो इस तरह से ये डाइकोटोमी इसमें प्रेजेंट होती है, और रिपीटेड डाइकोटोमी के कारण ये एक गोलाकार टेरिटरी में ग्रो करके चले जाते हैं, के ऊपर एक, जो कि लगता है जैसे रोज के पेटल्स होते हैं, उस तरह से ये रोजेट स्ट्रक्चर बनाते हैं। देन रिक्शिया क्रूशिएटा ओनली शोज 2 डाइकोटोमी, यानी एक बार डिवाइड होता है फिर दूसरी बार डिवाइड होता है। तो इसका मतलब ये क्रूशिएट फॉर्म, जैसे क्रूसीफेरी के मेंबर्स में होता है, जिससे सरसों है उसमें 4 पेटल्स पाए जाते थे, कहते हैं क्रॉसी और क्रूसीफॉर्म पेटल्स आर प्रेजेंट। तो उसी तरह से इसमें भी 2 बार, यानी एक बार थैलस 2 में डिवाइड हुआ और फिर आगे चल के ये फिर 2 में डिवाइड होता है ना। ये थैलस आगे केवल 2 में डिवाइड होगा, इसी तरह से ये क्रूशिएट स्ट्रक्चर बनाता है। तो दिस इज रिक्शिया क्रूशिएटा, उसी तरह स्पीशीज को नाम दिया गया है। ईच ब्रांच ऑफ थैलस इज लीनियर, वेज शेप्ड और ऑपकॉर्डेट, है ना। तो इसमें लीनियर होगा, यानी थोड़ी लंबाई तक ग्रो करेगा और फिर डिवाइड होगा, या वेज शेप बनाएगा ये, है ना, जैसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और कह सकते हैं बटरफ्लाई विंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा वेज शेप, और ऑपकॉर्डेट भी हो सकता है। ऑपकॉर्डेट का मतलब होता है उल्टा हर्ट। तो ये ऐसा प्रतीत होता है जैसे हर्ट स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, तो हर्ट का ऑपोजिट स्ट्रक्चर को ऑपकॉर्डेट कहते हैं। Then thallus is 5 to 7 millimeter long, very small. We can see by our naked eyes, but detailed structures we have to see by the microscope. Then broad कितना होता है? 1.2 millimeter broad. तो लंबाई में 5 to 7 millimeter, depending upon the species, and 1.2 millimeter broad. Generally terrestrial species का ये measurement है. Then Rixia fluitans, which is aquatic species, which is 30 to 50 millimeter, slightly long और ribbon shaped होती है, 30 to 50 millimeter long and 1 to 2 millimeter broad. तो ये measurement aquatic species का है. Then this thallus have 2 surfaces. One surface is the upper surface and another is the lower surface, जैसे leaf like structure में होता है. तो upper surface को हम dorsal surface कहते हैं, और lower surface जो कि earth से touch करती है, soil से touch करती है, उसको हम ventral surface कहते हैं. The dorsal surface is light green or dark green body, each branch having a thick midrib. It is traversed by conspicuous median longitudinal groove, which ends in the depression at the apical region, forming apical notch. You can see here in this diagram, this is dorsal surface of Rixia. All species have almost similar external features, having only difference in the measurement or production of the reproductive organs. तो ये इसका जो है डॉर्सल सरफेस है. इसमें जब भी डाइकोटोमी हो रही है, आप देख रहे हैं बार बार डाइकोटोमी हो रही है, साथ साथ इसमें मिडरिब है. ये मिडरिब भी डाइकोटोमी करती है. मिडरिब वास्तव में रिब लाइक स्ट्रक्चर शो तो करती है, इट इज हैविंग अ ग्रूव, है ना. ये इसमें एक नैरो ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम मिड डॉर्सल ग्रूव कहते हैं, लेकिन ये हर बार डाइकोटोमी शो कर रही है. देखिए डिवाइड हो रहा है, ये भी डाइकोटोमी शो कर रहा है, फिर आगे भी थैलस डिवाइड होगा तो ये डाइकोटोमी शो कर रही है. तो इसका मतलब इसमें डाइकोटोमस ब्रांचेस इसकी मिडरिब में भी प्रेजेंट होती हैं. और एपिकल रीजन में जाकर के, जैसे ये डाइकोटोमी शो की, लेकिन अभी ये 2 में डिवाइडेड नहीं है, तो ये यहाँ पर एक नॉच यानी थोड़ा सा ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम एपिकल नॉच कहते हैं. तो दिस इज कॉल्ड एज एपिकल नॉच. देखिए यहाँ लिखा हुआ है. तो दिस इज डॉर्सल सरफेस शोइंग मिड डॉर्सल ग्रूव, और मिड डॉर्सल लाइन भी हम इसको कहते हैं, डाइकोटोमी एंड एपिकल नॉच. तो आपको ये छोटे छोटे डॉट्स भी दिख रहे होंगे, दे आर पोर्स और ओपनिंग on the upper surface of each filament, है ना. यहाँ पे अंदर की तरफ, अभी मैं इंटरनल स्ट्रक्चर में बताऊंगी, फोटोसिंथेटिक फिलामेंट की ओपनिंग होती है यहाँ पर. तो इसीलिए हमें डॉटेड और स्प्रेडेड दिखता है, जब हम छूते हैं इसको तो ये स्प्रेडेड स्ट्रक्चर होता है.
ग्रोइंग पॉइंट इज सिचुएटेड इन द एपिकल नॉच। ये जो एपिकल नॉच है इसी में ग्रोइंग पॉइंट होता है। ग्रोइंग पॉइंट का मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल पाई जाती है। द मेन फंक्शन ऑफ मिड डॉर्सल ग्रूव इज टू रिटेन वाटर रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। ये जो ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है ये जिस समय रेनी सीजन होता है उसी समय फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसके अंदर जब भी बारिश होती है तो पानी को ये एक कप की तरह से या एक पाइप की तरह से रिटेन कर लेते हैं। Some hairy epidermal outgrowths are also seen in some species like Riccia melanospora. है ना, ये रेयर फीचर है जो कि नहीं पाया जाता लेकिन इसमें ये प्रेजेंट होता है। यानी हेयरी नहीं होता है जनरली, लेकिन मेलानोस्पोरा में ये हेयरी स्ट्रक्चर होता है ना। उसी का डिटेल व्यू हम देख रहे हैं। देखिए ये रोजेट है, यानी हर बार डाइकोटोमी बढ़ती चली जाती है और वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए रोजेट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो एवरी टाइम इट इज शोइंग डाइकोटोमी। जैसे पहली बार 2 ब्रांच बनी, दिस ब्रांच एंड दिस ब्रांच, फिर आगे चल के फिर 2 ब्रांचेस बनी यानी डाइकोटोमी हुई, है ना। और इसमें चूंकि इक्वल डाइकोटोमी होती है रिक्शा में तो ये रोजेट स्ट्रक्चर बनाता है। अनइक्वल डाइकोटोमी होगी तो ये रोजेट स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा। डॉर्सल सरफेस का व्यू हम देख रहे हैं। डॉर्सल सरफेस पे और कोई स्ट्रक्चर जनरली नहीं होता मेलानोस्पोरा के अलावा, उसमें हेयरी होता है। ये एपेक्स पे ये एपिकल नॉच है और बीच में ये जो है ये मिड डॉर्सल ग्रूव है। थोड़ा गड्ढे की जैसी संरचना होती है यहाँ पर। ये जो है ये मिड डॉर्सल ग्रूव है जो कि आगे चल के डायकोटोमी शो करेगा। नाउ वेंट्रल व्यू ऑफ द थैलस अगर हम स्टडी करें तो इसमें मैं यहाँ पर आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ और आगे मैं आपका डिटेल बताऊंगी आपको। तो वेंट्रल सरफेस पे भी ये एपिकल नॉच अपीयर होती है और इसके मार्जिन पे लगी होती हैं स्पेसिफिक स्मॉल स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड एज स्केल्स। और ये स्केल्स भी स्पेसिफिकली आप देख रहे हैं छोटे छोटे हैं, लिग्यूल लाइक है या इसको लिग्यूलेट स्केल्स कहते हैं। और मिड डॉर्सल ग्रूव के वेंट्रल सरफेस पर यानी ऑपोजिट साइड जो कि सॉइल से टच करती है उसमें पाए जाते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स और रूट लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको हम कहते हैं राइजोइड्स। ये आप देख रहे हैं। तो दीज आर प्रेजेंट ऑन दी वेंट्रल सरफेस, दीज ऑल आर राइजोइड्स। Now come to the detail of the ventral structure. The ventral surface of thallus bears many scales and rhizoids. So ये 2 features इसके ventral surface पे पाए जाते हैं, scales and rhizoids. Scales are violet colored, violet color के होते हैं, multicellular but one cell thick, है ना। यानी ये फ्लैट लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी 1 cell thick होते हैं, बिल्कुल पेपरी होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं, लेकिन मल्टी सेलुलर होते हैं। ये सेल्स का अरेंजमेंट इसमें शो किया गया है। तो ये सेल्स जो है वो ऑब्लिकली प्रेजेंट होती हैं, मल्टी सेलुलर हैं, दे आर नॉट ओवरलैपिंग। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको फिर बता रही हूँ, क्लास में भी मैंने पहले दिन बताया था कि जब भी हम लोग सेलुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, चूंकि अभी हम लोग एक्सटर्नल फीचर पढ़ रहे हैं, तो एक्सटर्नल फीचर में जब भी हम लिग्यूलेट स्केल बनाएंगे तो ये लिग्यूल लाइक है, तो इसको सिंपली ऐसे शो कर देंगे कि ये लिग्यूल लाइक होता है और अटैच होता है मार्जिन से, ये पोर्शन से ये मार्जिन से अटैच होता है, जो हमने अभी पिछले डायग्राम में देखा था। ये जो है ये इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, ये नैरो एंड से यहाँ पर ये अटैच होता है और लिग्यूल का मतलब ये टंग लाइक होता है स्ट्रक्चर। तो ये इंटरनल यहाँ शो कर दिया है। तो मैं आपको बताती हुई कि जब भी हम इंटरनल स्ट्रक्चर बनाते हैं या सेलुलर डायग्राम बनाते हैं, ये ध्यान में रखते हुए कि एक पॉइंट से 1, 2 और 3 ही सेल बनेंगी, है ना। तो जब भी आप ड्रॉ करेंगे इसको, अगर आपने ये 1 सेल बनाई, ये 2nd सेल बनाई, ये 3rd सेल बनाई, अब हमें आगे बनानी है सेल, तो ये 2nd सेल एक ही पॉइंट से हो गई। अब जब हम तीसरी सेल नेक्स्ट सेल बनाएंगे तो 1 पॉइंट से 1, 2 और 3 सेल्स ही बनेंगी। तो ये ध्यान में रखते हुए हम लोग सेलुलर स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसकी चूंकि स्केल्स बढ़ा रही थी तो स्केल का स्ट्रक्चर बता दिया है, क्योंकि ये मल्टी सेलुलर होते हैं, सिंगल सेल थिक, 1 सेल थिक होते हैं और वॉयलेट कलर के होते हैं, इसमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं। द कलर ऑफ द स्केल इज ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ द पिगमेंट इन द सेल सेप, और ये एंथोसाइनिन पिगमेंट होता है जो इनको वॉयलेट कलर देता है। स्केल्स आर अरेंज्ड ऑल अलोंग द मार्जिन्स इन अ सिंगल रो। तो रिक्शिया में ये एक रो में और केवल मार्जिन्स के साथ साथ अरेंज होते हैं, और दूसरे जीनस में एक से ज्यादा रो भी हो सकती है, राइजर्ड्स के दोनों तरफ भी हो सकते हैं, मार्जिन्स पे भी हो सकते हैं। तो ये वेरिएशन पाया जाता है अदर जीनस में। इन द एपिकल रीजन दे प्रोटेक्ट फॉरवर्ड। ये जो एपिकल रीजन में है आप देख रहे हैं यहाँ पर,
ये एपिकल रीजन में दोनों तरफ से, एक इधर से और एक इधर से, ये एपेक्स पे प्रेजेंट मेरिस्टेमेटिक सेल को प्रोटेक्ट करते हैं. Now, in hygrophilous species, hygrophilous का मतलब water absorbing and retaining species, which need largely supply of moisture for their growth, जिनको ज्यादा पानी चाहिए ग्रोथ के लिए भी और फर्टिलाइजेशन के लिए भी. The scales are ephemeral. ephemeral का मतलब शॉर्ट लिव्ड होते हैं, है ना, क्योंकि वो ज्यादा एब्जॉर्ब करके थैलस डेवलप कर जाता है, तो ये स्केल्स जो हैं धीरे धीरे इनका फंक्शन थैलस परफॉर्म करने लगता है, तो या रिटेनिंग ऑफ द वाटर. बट इन जीरोफिलस स्पीशीज, जीरोफिलस का मतलब जो कि ड्राई एरिया में पाए जाते हैं, दीज स्केल्स आर लीफी एंड परसिस्टेंट. क्योंकि ये स्केल्स लीफी और परसिस्टेंट होती हैं, वहां पर पानी की क्योंकि ड्राई कंडीशन के लिए अडेप्टेड होती हैं, केवल स्केल्स वाटर को एब्जॉर्ब करके रिटेन करते हैं, तो ये थोड़े से लीफी हो जाते हैं और परसिस्टेंट हो जाते हैं. थैलस उसमें कम वाटर स्टोर करता है, तो जब भी रिक्वायरमेंट होती है तो ये स्केल्स उनको मॉइस्ट रखते हैं थैलस को. In Rixia crystallina, the scales are inconspicuous or absent. तो crystallina में inconspicuous का मतलब बहुत छोटे, और जैसे जैसे ग्रोथ होती जाती है वो एब्सेंट होते चले जाते हैं, तो बहुत प्रोमिनेंट या क्लियर नहीं होते. नेक्स्ट है राइजोइड्स आर यूनिसेलुलर एंड अनब्रांच्ड. ये जो कि वेंट्रल सरफेस पे राइजोइड्स पाए जाते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, दे आर यूनिसेलुलर होते हैं और दे आर अनब्रांच्ड. They developed as prolongation of the lower epidermal cells. तो ये लोअर एपिडर्मिस के प्रोलॉन्गेशन से बनते हैं या उनके एक्सटेंशन से फॉर्म होते हैं. Now come to short note on rhizoids. इसी तरह से जो मैं पढ़ा रही हूँ इसमें लॉन्ग आंसर के साथ साथ शॉर्ट आंसर भी आ सकता है. स्केल्स पे शॉर्ट आंसर आ सकता है, राइजोइड्स पे आ सकता है. तो स्केल्स जो हम लोग रिक्शा में पढ़ रहे हैं ये मार्केशिया में भी पाए जाते हैं. तो जब मैं कंप्लीट कर लूंगी तो आपको कुछ शॉर्ट आंसर कंपैरेटिव जरूर पढ़ाऊंगी कि आपको कितना कंटेंट उसमें लिखना है. अब ये राइजोइड्स पे हम लोग शॉर्ट नोट यहीं पढ़ रहे हैं. राइजोइड्स आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट स्मूथ वॉल राइजोइड्स एंड सेकंड ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स. जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है, स्मूथ वॉल का मतलब इनकी जो वॉल है, इनर वॉल और आउटर वॉल दोनों स्मूथ होती है और पूरी खिंची हुई होती हैं. मींस स्मूथ वॉल राइजोइड्स बोथ हैविंग इनर एंड आउटर वॉल फुली स्ट्रेच्ड और स्मूथ, इसीलिए इसका नाम दिया गया स्मूथ वॉल. यू कैन सी हियर, ये स्मूथ वॉल राइजोइड का पिक्चर है. यहाँ पर ये एपिडर्मल सेल, ये एपिडर्मल सेल है, देखिए मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये लोअर एपिडर्मिस है और इसी के इलोंगेशन से ये बने राइजोइड्स. ठीक है, तो इनकी इनर वॉल भी स्मूथ होती है और आउटर वॉल भी स्मूथ होती है. So this is called as tuberculated rhizoid. This is called as a smooth wall rhizoid. The second is tuberculated rhizoid. Tuberculate का मतलब होता है इनमें tubercle या छोटे-छोटे finger like projections पाए जाते हैं. Tuberculated rhizoids, the inner wall layer modify into peg like or plate like or villi like structure, जैसे कि आप लोग intestine में पढ़ते हैं. In growth which projects into the cell lumen, जो कि अंदर की तरफ ये wavy इनर वॉल बनाती हैं और पेग लाइक और ट्यूबरकुलेटेड इनर वॉल बनाती हैं, लेकिन बाहर की वॉल इनकी स्मूथ वॉल्ड होती है. और ये दोनों तरह के राइजोइड्स इंटरमिंगल्ड पाए जाते हैं वेंट्रल सरफेस में, मिड रिब के जस्ट ऑपोजिट साइड में. तो देखिए ये जो लोअर एपिडर्मिस है उसकी सेल के एक्सटेंशन से बन रहे हैं, तो ये इस तरह से इनमें प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं. तो ये क्या करते हैं, ये एब्जॉर्प्शन की सरफेस को बढ़ा देते हैं. जो वाटर एब्जॉर्ब करना है सॉइल से, उसके एब्जॉर्प्शन के एरिया को ये बढ़ा देते हैं. और लेकिन आउटर वॉल इनकी स्मूथ होती है. ओके, तो दीज आर ट्यूबरकुलेट राइजोइड और ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स. इनका फंक्शन क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ राइजोइड्स इज टू एंकर, पकड़े रहना, द थैलस ऑन द सबस्ट्रेटम और सॉइल एंड टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. तो इनका मेन फंक्शन है एंकरिंग एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड mineral nutrition. Now specifically I have differentiated other species of Rixia from Rixia fluitans because Rixia fluitans is aquatic species. Rixia fluitans, the only aquatic species in India. Thallus is long, narrow, ribbon-like.
एंड डाइकोटोमसली ब्रांच्ड, लेकिन ये डाइकोटोमी इक्वल नहीं होती, ये रोसेट स्ट्रक्चर नहीं बनाते, तो ये रिबन लाइक होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। ये देख रहे हैं आप, इसका 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, 20 मिलीमीटर लॉन्ग तक हो सकते हैं, लेकिन ये डाइकोटोमी शो करते हैं। यू कैन सी हियर, ये जो थैलस का एपिकल एंड है ये हमेशा डाइकोटोमसली ब्रांच होता है, तो ब्रांचिंग इज डाइकोटोमस। Generally, rhizoids and scales are absent और rhizoids are rudimentary type होते हैं, तो rudimentary type और generally absent होते हैं। The species can grow on the soil. अगर ये स्पीशीज इसकी सॉइल के आसपास आ जाती है तो इसकी rhizoids वर्क करने लगते हैं और ये टेरेस्ट्रियल स्पीशीज की तरह ग्रो कर सकती है। In terrestrial species, thallus bear many rhizoids and small colorless or violet scales. तो जब ये एक्वेटिक स्पीशीज है, अगर ये टेरेस्ट्रियल हो जाएगी तो इसमें स्केल्स एंड राइजोइड्स का डेवलपमेंट होगा जो कि वायलेट कलर की होंगी, तो उसमें पाए जाते हैं, लेकिन जब ये टेरेस्ट्रियल मूव करती है तब। अदरवाइज एक्वेटिक स्पीशीज में राइजोइड्स एंड स्केल्स आर एब्सेंट। Now come to internal structure of gametophyte, that is anatomy of gametophyte. अगर हम इसका वर्टिकल क्रॉस सेक्शन काटें, इसको या तो VCS कहते हैं या इसको हम वर्टिकल ट्रांसफर सेक्शन VTS भी कह सकते हैं। क्यों TS कब कहते हैं? जब हम किसी इलोंगेटेड स्ट्रक्चर का इस तरह से डायग्राम काटें या इस तरह से सेक्शनिंग करें, तब हम उसको हम कहते हैं TS यानी ट्रांसफर सेक्शन। क्योंकि ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, तो जब लीफ का हम TS काटते हैं तो उसको हम वर्टिकल सेक्शन कहते हैं। तो हम इसको वर्टिकल, चूंकि थैलॉइड स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक फ्लैशी स्ट्रक्चर है, तो इसको जब हम काटते हैं तो हम इसको वर्टिकल सेक्शन कहते हैं। यानी अगर जब भी हम किसी भी लीफ का स्ट्रक्चर इस तरह से काटें होगा तो ये ट्रांसफर सेक्शन इस तरह से, तो लेकिन इसको हम VS या VTS भी कह सकते हैं, तो ट्रांसफर सेक्शन, बट पर्टिकुलरली वी आर कटिंग इट। तो अगर इंटरनली हम स्टडी करें तो इसमें दो जोन्स पाई जाती हैं। अपर रीजन की तरफ जो कि लाइट की तरफ होता है और उसमें फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी होती है, और लोअर रीजन जो कि सॉइल की तरफ होता है वो नॉन फोटोसिंथेटिक होता है। तो अपर रीजन को हम फोटोसिंथेटिक जोन कहते हैं। तो फर्स्ट रीजन जो होता है इसमें फोटोसिंथेटिक जोन होता है, और जो लोअर रीजन होता है हाफ लोअर और लेस देन हाफ लोअर, दैट इज कॉल्ड एज स्टोरेज रीजन। उसमें स्टोरेज कैपेबिलिटी होती है, उसमें जो भी सेल्स होती हैं वो स्टोरेज सेल्स होती हैं। The upper zone is green in color, present on the dorsal side of the thallus. It is made up of vertical rows of unbranched photosynthetic filaments. ये important है, इसमें photosynthetic filaments पाए जाते हैं which are unbranched, branched नहीं होती as compared to other genus. All the cells of photosynthetic filament except the uppermost one is isodiametric, यानी सारी सेल्स एक जैसी होती हैं अपर मोस्ट सेल को छोड़ करके। अपर मोस्ट सेल को छोड़ करके बाकी सारी सेल्स फिलामेंट की क्लोरोप्लास्टिक पिगमेंट्स कंटेन करती हैं, और क्लोरोप्लास्टिक पिगमेंट डिस्कॉइड होता है इसमें। द टर्मिनल सेल ऑफ फोटोसिंथेटिक फिलामेंट इज लार्ज, हाईलाइन एंड फॉर्म लूज इल डिफाइंड डिसकंटिन्यूअस एपिडर्मिस। तो हम इसको जो अपर सेल होती है हर फिलामेंट की, उसको एपिडर्मल सेल कहते हैं, क्योंकि वो इंडिविजुअली अलग अलग होती है, और हर फिलामेंट ओपनिंग बनाता है थैलस के ऊपर। अभी मैं डायग्रामेटिकली बताऊंगी। फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय नैरो लॉन्गिट्यूडिनल वर्टिकल कैनाल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज एयर चैम्बर। तो हर दो फिलामेंट के बीच में एक एयर चैम्बर प्रेजेंट होता है। ईच एयर चैम्बर इज बाउंडेड बाय 4 एपिडर्मल सेल्स, for example Riccia glauca, or 8 epidermal cells, Riccia vesiculosa. Each air chamber opens on the dorsal surface by an air pore, यानी हर फिलामेंट ऊपर की तरफ ओपन होता है, चैम्बर ओपन होता है with the help of epidermal cells. Air chamber spaces help in the gaseous exchange. तो ये CO2 and oxygen exchange के लिए work करती हैं. Because for photosynthesis, plant requires carbon dioxide, and after respiration, it requires oxygen and releases CO2. In aquatic species, Riccia fluitis, epidermis is continuous. उसमें चूंकि वाटर प्लांट है तो उसमें हर पोर होगा, तो वाटर वहीं से एब्जॉर्ब हो जाएगा, और वो एक तरह से ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करके खराब हो सकता है, डिटोरेट कर सकता है, तो उसमें
upper layer, lower layer continuous होती हैं. Air chambers are almost completely closed. होते हैं लेकिन closed होते हैं epidermal layer से. However, in terrestrial species of Rixia fluitans, each air chamber opens on the upper surface by small opening. Then in a spongy thallus of Rixia crystallina, the assimilatory or photosynthetic cells form a loosely arranged network enclosing large air spaces. You can see here with the help of diagram, it's very clear. जब भी हम लोग एग्जाम में अगर आए कि VTS थैलस ऑफ रिक्शिया बनाइए तो हमें ये दो डायग्राम जरूर बनानी है. इसी तरह प्रैक्टिकल में भी अगर हम कहते हैं आप रिक्शिया तैयार करके आइए, इंपॉर्टेंट है ये, तो आपको इसको थियोरेटिकली कॉपी में लिखना पड़ेगा, है ना. तो उस तरह से ये दोनों डायग्राम बनानी है. प्रैक्टिकल में कराएंगे तो उस तरह से भी और थियोरेटिकली भी एग्जाम में. तो जब भी हम बनाते हैं तो इसको डायग्राम को, जो ए डायग्राम शो कर रहा है इसको हम कहते हैं लाइन डायग्राम, और जो बी डायग्राम शो कर रहा है इसको हम कहते हैं सेलुलर डायग्राम. तो ये डायग्राम्स आपको जीनस में जरूर बनानी है. तो अगर हम आउटलाइन डायग्राम स्टडी करें तो ये पूरे फीचर्स को दिखाता है कि ऊपर की तरफ एयर चैम्बर्स हैं. अपर रीजन को हम, ये जो रीजन है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम फोटोसिंथेटिक जोन कहते हैं. ये रीजन यहाँ से यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड एज स्टोरेज जोन. अपर रीजन में जो फिलामेंट्स हैं वो स्ट्रेट होते हैं, अनब्रांच होते हैं. स्केल्स पाए जाते हैं एंड्स पर. यहाँ पे मैं देखिए स्केल्स का यहाँ फॉर्मेशन कर रही हूँ, ये रेड कलर की यहाँ स्केल है, थोड़ा एनलार्ज करके दिखा दिया है. मार्जिन्स पे प्रेजेंट होते हैं, दीज आर स्केल्स. तो कंप्लीट मार्जिन्स हैव स्केल्स. लोअर एपिडर्मिस एक्सटेंडेड इनटू द राइजोइड्स. ये पूरी बॉडी पैरेन्काइमेटस टिश्यू की बनी होती है. Chlorophyll containing cells in the photosynthetic zone, also parenchymatous, likewise in storage region. Now see the cellular diagram. You can see unbranched filaments. ये 4 to 5 cells जो नीचे की हैं. This is single filament having 4 to 5 cells which have chloroplastic pigments. The upper cell called as epidermal cell do not contain the chloroplast. इसमें chloroplast नहीं है. और हर फिलामेंट के बीच में, यानी दो फिलामेंट्स के बीच में, this is called as air chamber and it opens outside on the upper region called as air pore. तो ये एपिडर्मल लेयर कंप्लीट नहीं होती है ना, तो इसलिए हम इनको एपिडर्मल सेल्स भी कह सकते हैं या अपर मोस्ट सेल भी कह सकते हैं क्लोरोप्लास्टिक पिगमेंट की. द लोअर पोर्शन और द स्टोरेज जोन कंसिस्ट ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स which are storage in nature. These cells store starch. And the lower epidermis extended into unicellular, smooth-walled or tuberculated rhizoids. So this is anatomy of the Rixia. Rixia की सारी स्पीशीज सेम होती हैं जो टेरेस्ट्रियल हैं, बट Rixia fluitans have complete epidermis. You can see ये अलग अलग नहीं है, और फिलामेंट्स भी इसमें जो हैं वो ब्रांच्ड टाइप है एज कंपेयर टू अदर स्पीशीज. और ये बहुत सारी चैम्बर्स का केवल एक या दो पोर अपर सरफेस पे होते हैं. तो एपिडर्मिस इज कंप्लीट स्ट्रक्चर and this is upper photosynthetic zone and this is lower storage zone. Lower is storage zone. This zone represents the ventral tissue of the thallus and lies below the photosynthetic zone. It is towards the soil. It consists of compactly arranged parenchymatous cells. These cells are devoid of chlorophyll and contain starch as a reserve food material. तो ये स्टोर करता है स्टार्च को. The lowermost cell layer of this zone forms the lower epidermis. Lower epidermis is complete. In terrestrial species, it extended into the rhizoid. Some cells of lower epidermis extends to form the scales and both types of rhizoids. कौन से both type के हैं? Unicellular, smooth-walled and unicellular tuberculated rhizoids are present. So मैंने अभी इंटरनल स्ट्रक्चर तक ले लिया, तो गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया. अब हम इसके आगे नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे इसका रिप्रोडक्शन. तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन आएगा तो गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर ऑफ रिक्शा पे लॉन्ग आंसर 10 मार्क्स क्वेश्चन है. और
अगर ये 15 मार्क्स में है तो 7.5 मार्क क्वेश्चन होगा, और अदर पार्ट है रिप्रोडक्शन, उसी तरह से 10 मार्क्स में रिप्रोडक्शन भी आ सकता है। और स्पोरोफाइट पे आता है तो स्पोरोफाइट 5 मार्क क्वेश्चन होगा। तो वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक टुमारो मॉर्निंग। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो यू मे राइट इन द चैट बॉक्स और यू मे रेज योर हैंड। और संभावना आपके सेमेस्टर 1 के प्रैक्टिकल की नेक्स्ट वीक है। नेक्स्ट वीक मीन्स दिस वीक और नेक्स्ट वीक। दिस वीक मीन्स 5 और 6 April, 5th or 6th April, or we'll disclose the date today or tomorrow, or it may be after 8th, क्योंकि आपकी केमिस्ट्री की डेट शायद टेंटेटिव डेट्स जो सेट की जा रही हैं वो बैच आपको मिलेगा। अकॉर्डिंगली वी विल set your dates of the practical after finalizing of the chemistry. If you have any query, you may write, or I will come to your class today and tell you about the details, how you have to perform the practical. If no query, Jai Hind.